Hello and welcome. Good evening to each one of you. Last week we could not make stock market की बात MJ के साथ possible, so my apologies for that. Been having some other appointment, and a friend of mine had come to Mumbai, and we met after a long period of time. Besides, I had some other appointments. So let's look at what has happened in the fortnight. We met fortnight before, and we looked at the market. We had certain conversation about the market, the macros and micros of Indian economy or the international markets, what's been happening around, and based upon that, we concluded on how the market may be looking like in next week or next to next week, right? That's what is our way of looking at the market, is estimating the moves of market based upon whatever is happening around, that is changes in the fundamentals and also technical aspects of it, right? So Nifty has moved a very good way forward. Of course, it has still not crossed all-time high, but Bank Nifty has already done that. So let's look first at what's been happening in the market, right? So Nifty on Friday closed at 18,512. ऑल टाइम हाई निफ्टी का कितना था? लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से सवाल किया था कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें. सो दिस टाइम आई एम लेटिंग यू नो the all time high of Nifty was 18,604. So roughly we are just 92 points away from all time high of Nifty. So what's good about it? Now at the end of the day, Nifty has already moved up. What is a concern there? Now Nifty is in the distribution zone. तो डिस्ट्रीब्यूशन जोन क्या होता है? ये जोन ऐसा जोन होता है जहां पे कि अक्सर प्रोफेशनल्स अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं. They will keep on booking part profit as and when the market goes up, and they will fill up their portfolio when the market shows some or other healthy correction. That's how the professionals work, right? Even I work in that way. So I'll also let you know as and when you ask me about the stocks that some of the stocks I have completely offloaded, as well as some of the stocks I have booked part profit. Now, Bank Nifty का जो last all time high था, that was 41,840. उससे पहले भी Bank Nifty ने एक all time high बनाया था, that was at 41,830. So ये दोनों को पार करके Bank Nifty has already reached 42,983. So it very clear breakout from the distribution zone. So that's a healthy positive breakout. Now, if you've been following me for more than a year now, you would know that I've been always saying that financial sector, especially private banks, have got a lot of potential to grow in terms of prices, in terms of profitability, and that's been happening. NPAs have been reducing. One more surprising thing happened was rally in PSU banks, right? And you might have seen, so that was out of syllabus for me, right? तो मैंने मेरे PSU बैंक में जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन जोन में आए तो PSU बैंक्स में मैंने मेरी प्रॉफिट बुक कर ली. At the same time, there's nothing wrong in admitting, yes, they have gone beyond what I expected PSU banks to go. Private banks, yes, of course, I'm still invested in banks like SDFC or Kotak Bank or other large banks, right? तो ये बैंक निफ्टी में हो रहा है. Now, why our markets are rallying while as things are not so great in many parts of the world? The fact for that is the geopolitical stability, economic growth, solid tax collections, right? तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हमारे मैक्रोज एंड माइक्रोज आर बेस्ट अमंग इमर्जिंग मार्केट्स, राइट? सो वी आर स्टिल इमर्जिंग मार्केट. ओके, नाउ अगर फ्रेंड्स हम जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो हमने अक्टूबर का जो जीएसटी कलेक्शन था 1.52 लाख करोड़ था. इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन जीएसटी कलेक्शन क्रॉस्ड 1.5, मतलब 1.5 लाख करोड़ से
ऊपर, ऑब्वियसली बिजनेस अच्छा हो रहा है तो मार्केट में तो रिफ्लेक्शन होना ही है उसका, राइट। अगर हम एडवांस कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें, राइट, पर्सनल एज वेल एज कॉर्पोरेट एडवांस टैक्सेस 1.49 लाख करोड़ का डेटा था Q2 का, दैट वाज अगेन करस्पॉन्डिंग पीरियड से ऑलमोस्ट 17 पॉइंट अप था, राइट। Now you may have a logic here, कोरोना के साइड इफेक्ट्स थे, बट ओवरऑल इन एब्सोल्यूट numbers also, if you look at these collection data, you would find that's very encouraging, right? Gross direct टैक्स कलेक्शन की अगर हम बात करते हैं 10 नवंबर तक का डेटा मैं बता रहा हूँ, तो 8.71 लाख करोड़ है, राइट। अक्टूबर का 8.98 करोड़ था, सितंबर का 8.36 लाख करोड़ था। सो दैट्स अगेन वेरी एनकरेजिंग फिगर। ऑब्वियसली all professionals are reading these numbers, and these numbers are reflecting the growing business, the profitability of the companies and individuals, right? So अगर हम Q2 के FY 22-23 के Q2 की बात करें तो कॉर्पोरेट्स के रिजल्ट्स हैव बीन excellent, right? And Q1 की बात करें, they were good, and it is expected that Q3 results would also be good, barring couple of sectors, right? IT में, जैसे IT में मार्जिन का इश्यू चल रहा है, राइट, चर्न आउट काफी था मैनपावर की कॉस्ट बढ़ गई है, सो बिकॉज ऑफ दैट IT कंपनीज आर नॉट गिविंग द काइंड ऑफ प्रॉफिट्स दे हैव गिवन अर्लियर, सो थोड़ा उधर अभी भी डाउन साइड है। सो अदरवाइज अगर आप अदर सेक्टर्स की बात करोगे, इवन मेटल सरप्राइजिंगली हैज कम अप, राइट। ऐसा लगा था कि मेटल की अपसाइड, मेटल इज अ सिक्लिकल सेक्टर, राइट, तो ऐसा लगा था कि उसकी साइकिल कंप्लीट हो गई है। इट वेंट डाउन फॉर अ करेक्शन, आई थिंक 9 मंथ्स और 10 मंथ्स का, उसके बाद वापस इट हैज रिबाउंड, सो दैट्स अनदर थिंग इज हैपनिंग। तो अगर बात करोगे आप ओवरऑल इकोनॉमिक डेटा की, जो कि हम जनरली लेते हैं कहाँ से, IIP से लेते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से, पावर से, सीमेंट के कंजम्पशन से, स्टील के कंजम्पशन से, पेट्रोलियम के कंजम्पशन से, ऑटो के प्रोडक्शन से हम ये डेटा कलेक्ट करते हैं, राइट। इन सब में अगर ग्रोथ हो रही है तो दैट मींस इंडस्ट्रीज आर ग्रोइंग, इंडिविजुअल्स आर ग्रोइंग, ओके। नाउ अगर हम बात करें SGX निफ्टी की, तो SGX निफ्टी हैज क्लोज्ड ऑन फ्राइडे at 18,695। SGX निफ्टी मतलब जो करंट मंथ का फ्यूचर होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, राइट, जो कि सिंगापुर में ट्रेड होता है, right? It is traded in term of dollar, so many of the FIIs do trade there, and also they take counter trades there. They will be short in future of Nifty in NSE India, while as they may be long there, right? तो hedging वहां से भी कर सकते हैं। तो कई बार जो FIIs का डेटा होता है काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, तो अच्छी अपसाइड हमने SGX निफ्टी में देखी। Corresponding future of Nifty at NSE has closed, I think, 30 point below the 18,663. तो मंडे के लिए मे बी फ्लैटिश टू स्लाइटली पॉजिटिव आउटलुक निफ्टी का यहाँ से दिखाई दे रहा है अगेन, बट दिस कुड बी अ लिटिल डाइसी समटाइम्स, राइट। तो ये भी एक आपको चीज देखनी है, राइट। अगर ऑयल प्राइस की बात करें तो $83.66 में पर बैरल क्लोज हुआ है ब्रेंट क्रूड, सो दैट्स अगेन अ गुड फॉर द मार्केट। इंडिया के लिए बहुत अच्छा है क्रूड का प्राइस का कम होना, बिकॉज हमको बहुत सारा क्रूड इंपोर्ट करना पड़ता है, राइट। एंड हमने $120 पर बैरल भी देखा, वहां से $83 और $84 इज एक्सेलेंट मूव, राइट। Although we are importing Russian crude, with now Russia is our first partner, topmost partner in exporting their crude oil to us. So still हमारे पास में cheaper price पे आ रहा है, but at the same time even international market में अगर crude की price कम होती है तो that is a very positive sign for the stock market. Now, if you look at the gold price, gold closed on the last closer of the gold was at 52,544 per tola, or roughly 10 gram, right? तो slowly gold की price अभी increase हो रही, but it is more or less एक stagnancy में है. That is again बढ़ती हुई gold की price भी हमारे stock market के लिए inverse के relation में जाती तो अच्छी नहीं है.
ऑफ कोर्स आरबीआई ने कोई ऐसी नेगेटिव कमेंट्री दी नहीं है एज ऑफ नाउ, जो लास्ट कमेंट्री थी वही है, 50 बेसिक पॉइंट उन्होंने सितंबर में जो बढ़ाया था, दैट इज व्हाट हैज मेड आवर रेपो रेट एज 5.9%, राइट. सो वो हमारा रेपो रेट है, विच इज आई थिंक इट्स नॉट too much, so there is a still scope in order to reduce the inflation. Maybe थोड़ा बहुत interest rate अभी अगली मीट में जो कि दिसंबर में शेड्यूल्ड है उसमें शायद होगा, तो not a bad news on that front. Now what more has happened is USD INR, right. हम हमेशा USD का INR को हम USD के साथ में पैक करते हैं, and we look at it how it is placed, right. We've seen that at 83.3 rupees per dollar, and from there it has come down to 81.9493 के आसपास में ये ट्रेड हो रहा था फ्राइडे को, right. So that is again a positive for our market. Dollar index from 114.75 जो कि हाईएस्ट था, वहां से it has come down to $106, 106. तो that is also a positive sign, right. डॉलर इंडेक्स काफी बढ़ चुका था, वहां से नीचे गिरना अच्छा है. We've seen that at 80-85 जो भी था डॉलर इंडेक्स, वी यूज्ड टू से कि ज्यादा है, बट अभी 106 में स्टिल सिचुएशन इज मैनेजेबल, राइट. अगर इंडियन मार्केट की बात करें, इंडिया वीक्स हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड. आई थिंक मोर देन 1 year it hasn't gone below 40 now. Right now it is trading at 13.32, quite a low level of VIX. That shows the robustness of our market and the huge confidence, right. It is a fear gauge, तो fear काफी reduce हो गया स्टॉक मार्केट में. That's again a good news. PE की बात करें, निफ्टी PE जो प्राइस अर्निंग रेशियो है निफ्टी का, दैट्स शॉट अप टू 22.25, बट स्टिल अफोर्डेबल है, राइट. तो क्योंकि अर्निंग भी बढ़ रही है कंपनीज की. वी सीन दैट आल्सो एट 42-43 लेवल लास्ट ईयर, राइट. वहां से तो ऑलमोस्ट हाफ हो गया है. तो दैट्स अगेन अ गुड न्यूज फॉर द इन्वेस्टर्स, राइट. सो अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो एज ऑफ नाउ निफ्टी, बैंक निफ्टी, प्राइवेट बैंक का जो निफ्टी प्राइवेट बैंक है, या निफ्टी PSU बैंक है, और निफ्टी इंफ्रा है, रियलिटी है, ऑटो है, मेटल है, FMCG है, निफ्टी एनर्जी, CPSE, PSE, निफ्टी सर्विस सेक्टर, राइट. पिछले हफ्ते में सर्विस सेक्टर भी 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर चला. दैट मींस शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ऑल दीस सेक्टर्स हैव बिकम बुलिश. नाउ व्हाट इज स्टिल नॉट bullish on a long term are 3 sectors. What is that? IT, pharma and media. ये तीनों सेक्टर below 200 days moving average हैं. Some of them are above 100 days. That means we can say short and mid term में ये bullish हैं, but long term में they are still bearish. कहीं कहीं पे तो 15 से 20% करेक्शन हुआ, मतलब अभी भी डाउन है वो ऑल टाइम हाई से. सो इतना स्कोप उधर अभी भी ऊपर जाने का है. सो टर्न अराउंड हो रहे हैं, बड़े स्लो हो रहे हैं. ऑब्वियस रीजन है उनके. तो यूएस मार्केट को अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो यूएस मार्केट्स आर फ्लैटिश एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट आउट ऑफ 3 indices which we look at in US market, S&P 500, Dow Jones and Nasdaq, right. तो इसमें से अगर आप देखोगे तो Dow Jones is clearly trading above 200 days moving average. So in all time it is a long term bullish, right. So it has turned out to be bullish now. Tech index, that is Nasdaq, right. Nasdaq 100 technical companies का index है, and that is still trading below 200 days moving average. S&P 500 is also still below 200 days moving average. Just think of अगर ये 200 days के moving average के ऊपर जाते, that means long term bullish होते हैं, तो where will our market leading? I'm looking at the positive aspect. Of course you have to look from the both perspective. Pros and cons हमको दोनों देखने, right. Russian-Ukraine war, of course, continues, but is being discounted. Of course, it has increased the inflation in Europe, right? And now, what is happening is among the NATO partners or among the EU का जो union है, European Union है, उनमें आपस में फ्रैक्शन होना चालू हो गया, because they are finding it extremely difficult. Winters आ रहे हैं, winter में the temperature goes into minus there, and they need a lot of natural gas and crude oil, diesel, petrol to keep their homes warm as well as keep their vehicles running, right. So that is what is happening in the international scenario. So अच्छे साइन नहीं है वो, but एक चीज है कि इसकी वजह से बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे फोरम्स में ये बात हो रही कि भाई रशिया का जो क्रूड ऑयल है उसको कैप कर देना चाहिए, मे बी
Russia should sell crude oil below $60 per barrel or maybe $65. So that conversation is going on. इसके वजह से भी थोड़ा impact पड़ता है. So that means what is happening, the countries are now no more interested in complete embargo, but they want to give a little relaxation because उनकी खुद की इकोनॉमी की भी बैंड बच जाती है अगर वो ऑयल का प्राइसेस ज्यादा रखते हैं तो, राइट, या ऑयल की सप्लाई कम होती है तो सप्लाई डिमांड का गेम है, राइट. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग देयर इन दैट सिनेरियो. अगर हम यूएस इन्फ्लेशन की बात करें तो लास्ट मंथ का 7.75% था. तो यूएस इन्फ्लेशन हम कैसे देखते हैं, 12 महीने का देखते हैं. तो हमने नवंबर टू नवंबर देखना है या अक्टूबर टू अक्टूबर देखना है, तो ये अक्टूबर का डेटा, नवंबर का डेटा अभी आएगा. नाउ this we have seen the inflation from 9.1 to 8.8 to 8.5 to 8.2 to 7.75. so month after month ये inflation धीरे धीरे कम हो रहा है, राइट. तो ये एक अच्छी चीज है मार्केट के लिए. और if we look at GDP now, after GDP shrinking for 2 quarters, the last quarter it was expanded by 2.6% and expectation था जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनका कि 2.1% से expand होगी, but it increased by 0.5% more. So that was a very good news for the US stock market, right? Of course, जो Federal Bank of America के chairman है Mr. Jerome Powell, he has said कि there will be more increments in the interest rate, but the pace may be slower. That is again your market has taken it positively. So that's what is happening in the US market and their interest rates, right? तो पहली बात हो रही थी कि ईयर एंड में 4.6% तक, ईयर एंड ऑफ 23 इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, बट इट सीम्स नाउ द इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज मच मोर. Now on technical ground, friends, अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें, let me share the charts with you, right? So the charts are looking bullish on daily basis, right? You can see both on left hand side is a nifty chart and it is bank nifty chart here. अगर हम बात करें वीकली में, let's say वीकली में भी both are looking bullish. एंड अगर हम मंथली में बात करते हैं इन चार्ट्स की, तो मंथली में भी ये चार्ट्स काफी बुलिश नजर आ रहे हैं. क्लियरली बैंक निफ्टी इज आउट ऑफ द लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन जोन व्हाइल निफ्टी इज स्टिल स्ट्रगलिंग, क्योंकि ये हायर लेवल पे आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है, राइट. तो प्रोफेशनल प्रॉफिट बुकिंग कर ले, इसलिए निफ्टी में उतना ज्यादा मूव नहीं हो रहा है, राइट. और हायर लेवल पे सेलिंग प्रेशर आपको हमेशा दिखेगा जब भी मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन जोन में आएगा. So that's what is happening in our market. So what does emerge from here, from these charts? So technically speaking, Nifty, Bank Nifty, both are in bullish. In Nifty, of course, we saw bearish divergences, while as Bank Nifty seems to be unaffected on that front as of now. Okay. Now let us look at your question. So it is now based upon this input, you can plan out whether you want to remain bullish or bearish, or what kind of positions you want to, where you want to book the profits. Part profit हमेशा book करते रहना चाहिए. That's what I do, because by booking profits nobody has become poorer. All right. So okay, now let's look at your questions, friends, right? Many questions, many new people have come. So good evening once again and a warm welcome to the Stock Market Ki Baat MJ ke saath. So this is my contribution to our trading community, our investing community. Thousands of students who have learned the stock market with me, or we have studied together. I'm still a student of this market. Whatever studies I share just because of my passion for the market and to support the investing and stock market community, right? So do not consider my views as any advice. Do
Understand that this session is about studying the market and sharing the views. Do consult your financial advisor before taking the positions in the stock market. Stock market is a risky business, right? तो स्टॉप लॉसेस जरूर लगाएं यहाँ पे. Okay, so अभिषेक मेहरा जी का सवाल है. Let me display that question here. अभिषेक मेहरा जी का सवाल है कि your view on HDFC Life, TCA and Kansai Nerolac, right? So let's look at HDFC Life. So HDFC Life has been bullish for quite some time. All right, let me apply the chart of it, and then let me share this chart with you guys. Okay, so last week it has made a very good move, but again it is in a distribution zone, friends. So always look at where are you standing. If you are invested in it, book part profit at these levels, right? डिस्ट्रीब्यूशन जोन कहां से कहां तक का है इसका? दिस एंटायर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन जोन. ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जोन है जो भी आपको ये ब्लॉक दिख रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 599 टू 618. अगर आप इन्वेस्टेड हो, यू आर इन प्रॉफिट, कीप ऑन बुकिंग अ लिटिल प्रॉफिट, keep a little more. Now what will happen if this zone is broken with a good breakout? The market will come back within this zone to retest it. आप वो टाइम पर वापस से पोजीशन बना सकते हो, but never ever leave all the profit on the table. That is what I have learned, right? So it still looks bullish, right? So fundamentals आपको चेक करने पड़ेंगे. As of now I haven't checked the. Now insurance companies का fundamental analysis and data perspective completely different होता है. It takes time and you need to be focused on. I'm not invested in insurance companies as the valuation of insurance companies is a little dicey and I stay away from it. So I'll not be commenting on fundamental basis. Technical basis पे looks like a little upside is still there in this, right? Now बात करते हैं हम TCS की. TCS जैसे मैंने पहले कहा कि एज ऑफ नाउ ऑलरेडी पिटा हुआ है. आईटी सेक्टर में अभी भी बुलिशनेस बहुत ज्यादा आई नहीं है. मोस्ट ऑफ देम आर गिविंग अ लिटिल ब्रेकआउट, राइट? तो इफ यू लुक एट दिस चार्ट ऑफ टीसीएस, इट हैज मेड अ बाउल पैटर्न, राइट? बट ये ब्रेकआउट, अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाना है 3450 के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं. वैसे इसने जो ट्रेंड लाइन है, जो डिसेंडिंग चैनल था, वो तोड़ दिया. अगर ये सस्टेन करता है 3450 के ऊपर, द नेक्स्ट टारगेट विल बी 3800, ठीक है? और वो लेवल तोड़ता है तो 4000 का इसका सेकंड टारगेट हो सकता है, राइट? बट यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथ बनते हुए नजर आ रही, पैटर्न्स अच्छे लग रहे हैं, राइट? टेक्निकल लेवल पे. ओके, थर्ड सवाल है आपका कंसाई नेरोलैक. अगेन कंसाई नेरोलैक का आपको फंडामेंटल भी देखना पड़ेगा. आई एम नॉट फेमिलियर विद द फंडामेंटल ऑफ दिस कंपनी. स्टिल इट इज इन द ग्रिप ऑफ बेयर्स. कंसोलिडेशन चालू है, यहाँ पे अच्छा मूव दिया था इसने, राइट? एंड सपोर्ट कहाँ पे है इसका? मोर और लेस ये एक सपोर्ट जोन है इसका, ये एक्यूमुलेशन जोन है. सो मे बी strong hands have started picking up this stock, right? Let's look at what are the fundamentals of this company. 436 पे ट्रेड कर रहा है Kansai Nerolac. Most of the time I've seen the paint companies are traded at high P. तो ये भी 57 58 के P पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री का P कितना है? 57 का ही है, राइट? सो एट पार है. प्रॉफिट लास्ट 5 साल के देखोगे तो माइनस में है यहाँ पे, विच इज नॉट अ गुड साइन. डेट नहीं है ये कंपनी में, अच्छी चीज है. सेल्स ग्रोथ तो 5 साल की सिंगल डिजिट में है. अगर 10 ईयर की बात करेंगे तो यू विल हैव टू, 10 ईयर का तो डेटा नहीं है, मतलब 10 साल पहले शायद ये लिस्टिंग नहीं हुई होगी इस कंपनी की, सो पब्लिक डोमेन में वो डेटा नहीं है. 80 रुपीज की बुक वैल्यू 435 पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 5.38 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू. जनरली मैं 3.5 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू प्रीफर करता हूँ. आई डोंट प्रीफर 5-6 टाइम्स. maybe from the growth perspective it would be okay, but fundamental perspective say it is already beyond its
फेयर वैल्यू, राइट। फेयर वैल्यू इसकी अराउंड 200 सवा 200 रुपए की फेयर वैल्यू है और ये ऑलरेडी डबल पे ट्रेड कर रहा है। नाउ देयर माइट बी गुड शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हियर। पेंट इंडस्ट्री में जनरली एफआईज डीआईज की अच्छी होल्डिंग रहती है। 75% यहाँ पे प्रोमोटर के पास में, डीआईज 13% है और 3% एफआई, तो स्टेबल है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से बात करता हूँ तो कैश फ्लो माइनस में है, नेट कैश फ्लो माइनस में है। नाउ पेंट इंडस्ट्री इज अ गुड कैश जनरेटर, राइट। तो कैश हमेशा, अगर आप इन्वेस्ट करने के मूड में, हमेशा देखें कि फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव में होना चाहिए, राइट। ईपीएस बढ़ता हुआ होना चाहिए, सेल्स बढ़ती हुई होनी चाहिए, प्रॉफिट बढ़ता हुआ होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा 5 साल में सेल माइनस साइड में गई है, राइट। अगर मैं ईपीएस की बात करता हूँ तो ईपीएस भी इसका अगर आप देखोगे 2, 1.9, 5, 3, 5, 16, 9, 9, ईयर आफ्टर ईयर इट इज बीन वेरी अप एंड डाउन, कंसिस्टेंसी नहीं है कंपनी में। सो आई वुड से take your position only once it crosses 200 days moving average, which is around 475 or so, right। उसके बाद में यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। अभी थोड़ा बेरिश है ये स्टॉक, या स्टैगर्ड मैनर में जैसे सिप के फॉर्मेट में हर वीक में आपने 10 स्टॉक या 5 स्टॉक खरीद लिया, वो पैटर्न से भी आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपका एवरेज रेट काफी कम हो जाता है। Okay, so that's what strategy can use for this stock. नीलेश का सवाल है, I'm invested in power trend PTC में 136, your view। Okay, power trading corporation का PTC का चार्ट हमने काफी महीनों पहले देखा है। Let's start that. Meanwhile, इसका PTC का fundamentals भी देख लेते हैं। It's important whenever you are looking at the company after a long period of time, always look at their fundamentals, right? So 166 का बुक वैल्यू है, ऑलमोस्ट हाफ पे ट्रेड कर रहा है, राइट। आरओसी और आरओई ठीक है, ऑलमोस्ट 2 डिजिट में, 10 के आसपास में, नॉट वेरी गुड। स्टॉक का पी 5.18, इंडस्ट्री का 31 है, सो अंडर वैल्यूड है क्लियरली। जनरली क्या होता है, जो सरकारी कंपनीज हैं उनके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेचुरली कम होने वाले, राइट। दे आर नॉट वेरी एग्रेसिव, सो बट डिविडेंड यील्ड अच्छा रहता है जनरली। अभी यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है 2.26 का, दैट इज वेरी लेस। ओके, इन दिस काइंड ऑफ कंपनी कम से कम डिविडेंड यील्ड आपका 8-10% होना चाहिए, इवन इफ द प्राइस हैज गॉन अप। सो दैट वे थोड़ा महंगा है। अगर फेयर वैल्यू पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो मे बी अराउंड 200 रुपए 250 रुपए के आसपास की, तो फेयर वैल्यू से काफी कम में ट्रेड कर रहा है। जनरली क्या होगा, इस टाइप की कंपनीज आपको ग्रोथ कम दिखेगी। whenever you are looking at this kind of companies, look at company giving good dividend and company may be having a slow growth, so that you will have to accept कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। लेट्स सी द चार्ट नाउ। ओके, सो 88 पे ये अगेन डिस्ट्रीब्यूशन जोन में आ गया और ये चौथी बार आ रहा है ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन में, राइट। तो दैट मींस ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन इसका कमजोर हो गया। सो इफ यू हैव इन्वेस्टेड 136, तो काफी नीलेश आपने बहुत ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। ये स्प्लिट वगैरह होके नीचे आया है क्या? ओके, मेरे ख्याल से यहाँ पे ना आप पोजीशन बढ़ा सकते हैं थोड़ी। आई डू नॉट नो हाउ मच व्हाट इज द काइंड ऑफ पोजीशन साइजिंग यू यूज, व्हाट इज योर ओवरऑल कितना परसेंट आपने इसको अलोकेट करके रखा। कभी भी अगर आप अभी स्टॉक रखते हो तो किसी भी स्टॉक में यू शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग मोर देन 10% ऑफ योर कैपिटल। 5 to 10% अलोकेट करें तो उसमें आपके पास में कुशन रहता है, जब भी प्राइस गिरती तो आप उसको ज्यादा खरीद सकते हो, राइट। कई बार इस कंपनी में भी मैंने सर्किट लगते हुए देखे हैं, सो दैट इज अगेन नॉट द काइंड ऑफ कंपनी आई पर्सनली प्रेफर। सो निकले नहीं यहाँ से, मेरे ख्याल से 108, 110, 105 से 110 का पहला इसका टारगेट है। 121, 30, 144, दीज आर द टारगेट्स एज ऑफ नाउ। स्ट्रेंथ बन रही है कंपनी में, कोई इश्यू नहीं है। डाइवर्जेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता हूँ तो पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस, मतलब डाइवर्जेंसेस स्ट्रॉन्ग है, कोई नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एज लॉन्ग एज मार्केट गोज अप दिस माइट शूट, राइट। सो उसके हिसाब से आप देखें। इफ
allocation is less, you can add a little more allocation so that आपकी एवरेज प्राइस अच्छी हो जाए, और डिविडेंड की बहुत ज्यादा आशा न करें यहाँ पे, राइट? ओके, एनीथिंग अनूप जैन जी, गुड नाइट सर जी। आपने गुड नाइट गुड इवनिंग होने से पहले ही कर दिया अनूप जी। ओके, thank you for writing that market had the last all-time high of Nifty was 18,604. We discussed that in the beginning itself. What is your opinion on PSU banks now? So Anup ji, मेरी opinion PSU bank के बारे में कैसी है कि if you are a momentum trader और momentum investor क्या होता है? वो एक flow के साथ में अच्छा technical knowledge होती है उसको। अगर मैं यहाँ पे आपको निफ्टी PSU बैंक का चार्ट लगाता हूँ, राइट, तो उससे हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। मेरे हिसाब से अगर आपको अच्छी ग्रोथ चाहिए है तो आपको PSU बैंक्स में उतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी जितनी की प्राइवेट बैंक में मिलेगी। सो आई एम आउट ऑफ PSU बैंक्स, राइट? As long as now government had been infusing a lot of money and at this point of time NPAs कम हो गए हैं, right, and a lot of money flow is there in the banks, all is going well. अभी देखिए, इन्फ्लेशन जब ज्यादा होता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं तो बैंक को फायदा होता है। नाउ एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाए, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में क्या होगा? इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो हो जाएगी, डेवलपमेंट की ग्रोथ स्लो हो जाएगी। उस टाइम पर कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि कॉस्ट ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी। ऐसे में गवर्नमेंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट गिराना पड़ेगा, कंपनीज को फंड्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे ताकि कंपनीज बेटर रिजल्ट लाएं, बेटर सर्व कर पाए इंडस्ट्रीज को, राइट? तो वो टाइम पर गवर्नमेंट किसको बोलेगी कि तुम फंड्स प्रोवाइड करो? चाहे वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हो चाहे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हो, गवर्नमेंट हैज कंट्रोल ओनली ऑन PSU बैंक्स। सो एनी सेक्टर वेयर गवर्नमेंट हैज इट्स इंटरफेरेंस, राइट, पॉलिसी चेंज करने की पावर गवर्नमेंट रखती है, तो those are the sectors where you should stay away from as an investor, because वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो गवर्नमेंट कभी भी कर लेगी। और कोई भी गवर्नमेंट होने दो, पास्ट में ऐसा हुआ है, सालों की, मतलब टेंस ऑफ डेकेड्स का हिस्ट्री है। तो जब भी रिसेशंस आते हैं, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ जाते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज ट्यूब करती है। तो ऐसे में PSU बैंक की फिर हालत खराब होगी। इसके लिए मैं PSU बैंक से एज ऑफ नाउ दूर हूं। राइट नाउ दे आर लुकिंग बुलिश, डिस्ट्रीब्यूशन जोन यहाँ पे था, वो ब्रेकआउट हुआ है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन में जहां पे भी ये पहुंचने वाला है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो, दिस इज ऑल टाइम हाई पे ये करीब करीब पहुंचने वाला है, राइट? सो इफ यू आर इनटू PSU बैंक्स, ये इंडेक्स को, इसका जो सेक्टोरियल इंडेक्स है उसको वॉच करें। 4,500 के ऊपर अगर ये सेक्टर जाता है और स्टे करता है थोड़े टाइम, देन देयर विल बी मोर अपसाइड, बट ये अभी ऑलरेडी वहां पे पहुंच रहा है डिस्ट्रीब्यूशन जोन में। दैट मींस PSU बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावना काफी ज्यादा है अभी। सो दैट इज माय व्यू ऑन PSU बैंक्स। होप you got some information on that, useful information on that. प्रमोद जी का सवाल है, मनप्पुरम एंड IEX एंट्री टारगेट फॉर 2 months। मनप्पुरम देखते हैं प्रमोद जी। मनप्पुरम आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन फॉर मोर देन अ ईयर नाउ, ओके, बट अगेन मेरा तरीका है, मैं स्टैगर्ड मैनर में खरीदता हूँ, ठीक है। So Manappuram has given a good breakout from inverted head and shoulder, but इसका स्ट्रगल चालू है कहाँ पे? 200 डेज के मूविंग एवरेज पे। If you look at the correction here, this was a profit booking। जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा होगा वो लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है, मतलब जिन लोगों ने 1995 के लेवल पे खरीदा उनको अगर 15-20% मिला 118 या 115 के वैल्यू पे, उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया। एज ऑफ नाउ इट इज स्टिल बुलिश, बट 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करने दीजिए, सस्टेन करने दीजिए 115 के ऊपर। देन व्हाट विल बी योर टारगेट? योर फर्स्ट टारगेट इज 125,
your second target will be 158 or maybe around 150. Third target will be 180. Now नेक्स्ट 2 मंथ्स की अगर हम बात करें, अगर मार्केट में कोई करेक्शन नहीं आता है तो द टारगेट फॉर दिस स्टॉक कुड बी समवेयर अराउंड 130 135 के आसपास में. अगर आप 6 महीने का टारगेट बात कर रहे हैं तो वी कैन थिंक ऑफ अ टारगेट ऑफ 150 टू 180, राइट. अदरवाइज बुलिश है, नो इश्यूज. काफी पीटा हुआ है, मतलब अच्छी धुनाई हुई है ये स्टॉक की, राइट. एनबीएफसी इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो एनबीएफसी हैड बीन थ्रू द बैड फेज. आई थिंक दे आर रिकवरिंग नाउ. IEX, let's look at IEX. IEX तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, राइट. तो इसके चार्ट को देखते हैं. लेट्स लुक एट what it has been doing. I think those of you being connected with me for a longer period of time, IEX के split के टाइम से मैंने कहा था कि ये स्टॉक नीचे जाएगा, ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है. एंड हमने ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा था यहाँ पे. हमने वो टाइम पर टारगेट दिया था इसका, यहाँ पे ये था 175 का वो टारगेट अचीव हुआ है. उसके बाद में ये और नीचे गया. हमने नेक्स्ट टारगेट जो दिया था ये उस जगह पे देखो आप 145 के आसपास में ये जोन में है, राइट. तो इसका इनफैक्ट अगर लोअर साइड देखेंगे तो ये था. Now this has been through that correction. I think now let me enhance this chart and let me apply. Okay, so now this stock has moved into bullish territory. However, strength is still weak. अगर हमने फ्राइडे और थर्सडे का डेटा देखा है तो अच्छी बाइंग हुई है यहाँ पे. दिस हैज कम अबव 50 days मूविंग एवरेज, येट इट इज नॉट अबव 100 and 200 days मूविंग एवरेज. सो इफ यू वांट टू टेक अ लॉन्ग पोजीशन नाउ, योर फर्स्ट टारगेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विल बी अराउंड 170, जो कि 200 days मूविंग एवरेज के आसपास में. If that is crossed, you may see 190 के आसपास में इसका नेक्स्ट टारगेट. नाउ बात रही 2 महीने की. कंसिडर वी आर इन द एंड ऑफ नवंबर नाउ. जनरली दिसंबर का महीना मार्केट के लिए थोड़ा ठंडा होता है. सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ वीक बिकॉज ऑफ लॉन्ग हॉलीडेज ऑफ FIIs, राइट. क्रिसमस के टाइम पे जनरली उनका मार्केट 10-12 दिन तो एकदम ही ठंडा पड़ जाता है. तो वो हिसाब से मोमेंटम रहेगा क्या, क्योंकि आपने अगले 2 महीने की बात की है तो वो अगले 2 महीने में 15 दिन तो ये सुस्ती वाले रहने वाले दिसंबर में, राइट. तो आपको वो हिसाब से सोचना है. तो मेरे ख्याल से ये 170 180 वाला टारगेट आपका जनवरी फरवरी तक आना चाहिए, ठीक है. टाइम के पर्सपेक्टिव से बात करें, जनवरी फरवरी आर गुड. In fact, January, February, March are the times when people invest, right? So hope you got the clarity on both of your stock. अजय का सवाल है 18700C होल्ड है 10 लॉट, योर ओपिनियन. सो 18 आई डोंट रिमेम्बर अजय जी, पहले भी आप थे क्या? लास्ट टाइम भी किसी ने ऑप्शन का मेरे से सवाल पूछा था. I am an option seller and I sell put as well as call both. Reason being very simple, most of the time market remains in the grip of consolidation, right? Let's go back to Nifty chart, right? और निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे तो आपको मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है बैंक निफ्टी के जैसे. लेट मी नाउ, अगर हम निफ्टी का ऑल टाइम हाई देखें तो हम ऑल टाइम हाई के यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जोन में हैं. कोई भी करेक्शन आपकी पोजीशन, आपने ये लिखा नहीं कि ये कौन से सीरीज का है, वेदर इट इज अ फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर और लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, ठीक है. तो 700 इज ऑलमोस्ट आपका 200 पॉइंट दूर हुआ. दैट मीन्स यू आर 200 पॉइंट आउट ऑफ मनी. कभी भी अगर आपको सी या पी खरीदना, कॉल ऑप्शन खरीदना है या पुट ऑप्शन खरीदना, फर्स्ट
इन द मनी जाए, एटलीस्ट 100-200 पॉइंट डेल्टा ज्यादा होता है वहां पे, थीटा डीके कम हो जाता है। थीटा डीके कम करने के लिए आपको क्या करना है, कम से कम 4 हफ्ते या 8 हफ्ते आगे के सी या पी को खरीदना, जो भी आपका व्यू है मार्केट के बारे में, राइट। सो 5 ग्रीक काम करते हैं ये मार्केट में आपके ऑप्शन के, डेल्टा विच इज रन बाय द रन ऑफ अ प्राइस। अगर प्राइस बढ़ रही तो डेल्टा बढ़ेगा तो आपकी प्रीमियम बढ़ेगी। लेकिन डेल्टा ऑफ एट द मनी इज अराउंड 0.5। आउट ऑफ द मनी आप जैसे जैसे जाओगे डेल्टा बहुत कम होते जाता है, 0.4 0.35, तो इवन प्राइस बढ़ेगी, आपकी प्रीमियम जल्दी बढ़ेगी नहीं, तो ऐसे में आपका लॉस है। एट द सेम टाइम अगर नजदीक का एक्सपायरी है तो आपका ऑप्शन का थीटा, दैट इज अ टाइम डीके, विल बी मोर। Now India VIX has already dropped and it is dropping day by day. So Vega, which is the third factor, is not in your favor. Fourth factor, gamma, which again enhances the value of delta, thus on increase of your underlying asset आपका प्रीमियम बढ़ता है, बट आपका डेल्टा ही कम है, तो गामा कितना भी बढ़ाएगा उसको फटाफट नहीं बढ़ा सकता है, ठीक है। सो यू नीड टू बी फर्स्ट be aware of it. Don't mind buying expensive और ज्यादा प्रीमियम वाला ऑप्शन खरीदने में हिचकिचाएं नहीं। कम प्रीमियम की वजह से ओटीएम खरीदोगे आप तो आपको लॉस होने वाला है, राइट। और 700 बहुत दूर है आपके लिए, जरूरी नहीं कि अगले हफ्ते में 700 आ जाए। थीटा डीके विल किल योर प्रीमियम। आई होप गॉट द क्लैरिटी। आई थिंक लास्ट वीक में भी किसी ने मेरे से सवाल पूछा था। It's important for you to understand how the options work. But अगर आपने ऑप्शन बेचा है तो then definitely आपको थीटा डीके मिलेगा ही मिलेगा। वेगा कम हो गया, आपको उसका फायदा है, राइट। और जब हम सेल करते हैं, हम ओटीएम में सेल करते हैं और फार ऑफ करते हैं, हम तो 700 800 600 पॉइंट दूर सेल करते हैं, वहां वो पहुंचता ही नहीं है, जीरो में कन्वर्ट हो जाता है वो ऑप्शन। तो सेलर इज ऑलवेज एट अ एडवांटेज, राइट। सो ऑल प्रोफेशनल्स इन ऑप्शंस, 99% प्रोफेशनल विल बी सेलिंग। तरुण नैथानी जी का है कि क्रूड ऑयल बढ़ेगा या नहीं सर जी। ना क्रूड ऑयल तरुण जी बहुत कम चांसेस हैं, विंटर है इसके वजह से थोड़ा बढ़ सकता है, बट देखिए क्रूड, लेट्स अंडरस्टैंड कि इसके फेवर में और नॉट फेवर में क्या है, अगेंस्ट में क्या है, क्लियर। सो फेवर में क्या है, विंटर का सीजन है, यूरोप में और अमेरिका में कंजम्पशन बढ़ जाता है। कंजम्पशन का बढ़ना मतलब डिमांड बढ़ना हो गया, राइट। सेकंड, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने के फेवर में क्या है कि ओपेक ने कहा कि भाई हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे नहीं, मतलब वो कह रहे कि हम सप्लाई कम रखेंगे, राइट। तो सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ती है, राइट। तो ये फैक्टर क्लियर है आपके प्राइस के बढ़ने के फेवर में। न बढ़ने के फेवर में क्या है, देखिए ऑलरेडी प्राइस क्रूड की बहुत ज्यादा थी। क्रूड शुड बी समवेयर इन $60-65 रेंज, वहां से ये ऑलरेडी $20 एक्स्ट्रा है, तो व्हाई इट शुड राइज फर्दर। एक सेकेंड, चाइना में बहुत सारी, देखो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करने वाले, ह्यूज कंजम्पशन करने वाले कौन से कंट्रीज हैं, वहां पे क्या चल रहा है, ठीक है। इंडिया एक वन ऑफ दोज कंट्रीज, राइट। हमारे यहाँ पे कंजम्पशन ज्यादा होता है, लेकिन हम ऑलरेडी रशिया से एक फिक्स रेट पे सस्ते में क्रूड खरीद रहे हैं, तो वी आर नॉट द रीजन बिकॉज ऑफ whom the crude price will go up. China is another reason which increases the price of crude because consumption बहुत ज्यादा होता है, बट चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी है, राइट। तो बहुत सारी जगह लॉकडाउन में है एंड स्टिल दे आर गोइंग दैट वे। Now it is another subject, maybe they did this zero COVID policy because of re-election of the president, और वो हो गया है अभी, राइट। तो मे बी थोड़ा ईज आउट होगा वहां पे, तो वो क्रूड का प्राइस, कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगी। बाकी उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ जो मेजर कंट्रीज हैं, यूरोप है, दे हैव कम टू अस, एक इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। So I'm not seeing the crude price to go very high from here. Maybe $90 on the upper side, lower side it may be around $78, $75. This should be where the
crude should be fluctuating in next few months. So that's my view on it. अच्छा, कई रिपीट क्वेश्चन है। एक ही बार सवाल पूछिएगा सर। आई ऑलवेज लुक एट द स्क्रीन, योर क्वेश्चंस आर फ्लैशिंग टू मी, I'll definitely take them, right? But if you ask me 10 times, वो अपने ही सीक्वेंस में आएगा, मैं एक एक करके ही लेता हूँ आपको। अच्छा, तरुण नथानी जी ने मार्केट, अच्छा, अजय का सवाल का जवाब भी दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल मैं लेता हूँ पार्थी पाटिल जी का। आरईसी लिमिटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नाउ, ठीक है। तो आरईसी का देखिए, फंडामेंटली आरईसी इज अ ग्रेट कंपनी, अच्छा डिविडेंड देती है आपको। इवन एट दिस प्राइस इट माइट बी ऑफरिंग एटलीस्ट 10% का डिविडेंड, विच इज मच मोर देन द बैंक्स, राइट? नाउ फ्राइडे एज वेल एज थर्सडे वी सॉ अ गुड अपसाइड इन आरईसी। वॉल्यूम देखेंगे, अच्छा वॉल्यूम बड़ा है। अगर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, आरएसआई शोइंग फर्दर बुलिशनेस, राइट? एमएससीडी बुलिश है, although stochastic says it is gone in a overbought zone, but it has of course gone in a zone where before split ये चल रहा था, split हुआ इसका, राइट? 1:3 में, तो 3:1, I should not say split, it was basically a bonus, right? 3 शेयर के ऊपर 1 शेयर इन्होंने बोनस में दिया, तो प्राइस एडजस्टमेंट हुई यहाँ पे। सो इट हैज रीच्ड बैक टू दैट लेवल, जो कि ऑलमोस्ट 2 महीने 2.5 महीने पहले था। ये जोन में स्पेशलिटी क्या है? दिस is a distribution zone for REC, so some profit booking you might see in coming week. But if it sustains above 110, then the next target will be 125, which you might see in another 2 to 3 months time for this. Should you invest now? I would say नहीं, थोड़ा वेट करिए, यहाँ पे इसको ये जोन तोड़ने दीजिए। महंगा मिलता है कोई बात नहीं, 111 पे भी आप खरीद सकते हो इसको, बट 111 115 के बाद में ना ये वापस रीटेस्ट करने आएगा यही जोन को 109 और 108 के टाइम पे। जब वो रीटेस्ट करने आए वो टाइम पर इन्वेस्टमेंट इज अ गुड एडवाइस। अदरवाइज, एंड क्यों आएगा वो? ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। हर बार ब्रेकआउट होते नहीं, एक टेंटेटिव पैटर्न है यहाँ पे, राइट? तो जब भी प्राइस ऊपर जाएगी, देन देयर विल बी अ ट्रेंड लाइन व्हिच विल पुश इट डाउन अगेन बैक टू दैट नेक लाइन ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो वहां पे खरीदना टेस्ट बैक के बाद में is more advisable. Otherwise, you can buy in staggered manner. REC, you can rather make a sip throughout the year. रोज एक शेयर खरीद ले. That's the way you can buy REC. It will keep on giving you good dividend. All right. Let me check next question. Petronet for swing long, right? So let's look at the Petronet. Petronet, I refer to LNG. Sure, you're talking about that. See, if Thursday, Friday, both the days we saw good move in petro companies also, right? Natural gas की companies या petro companies में। अच्छा, यहाँ पे तो बात ही अलग है, यहाँ पे डिविडेंड दिया तो डिविडेंड एडजस्ट हुआ है 7 रुपए का। Still it is in a bullish mode, right? इट्स ट्रेडिंग एट 209। मेरे ख्याल से 215 के ऊपर आप पोजीशन बनाएं। 230 के टारगेट के लिए आपका पहला टारगेट 230 का होना चाहिए करीब करीब यहाँ पे, और नेक्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए 40 to 45 के आसपास में, राइट? दिस शुड बी योर टारगेट नंबर 2। लॉन्ग ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। द डिविडेंड हैज मेड इट्स सपोर्ट जोन नाउ हियर, ठीक है? 205 के नीचे, 204 के नीचे जाए तो एग्जिट कर जाए, तो स्टॉप लॉस भी आपका हो गया है यहाँ पे, राइट? माइल का सवाल है बजाज फिनसर्व। लेट्स से बजाज फिनसर्व,
चार्ट को खोलने दीजिए। बजाज फिनसर्व भी स्प्लिट हुआ है, राइट, 10:1 में। सो 1600 पे ट्रेड कर रहा है, बुलिश है, कंसोलिडेट कर रहा है ये जोन में। वेट करें यहाँ पे, अगर 1620 के नीचे जाता है या 1600 के नीचे जाता है, यू माइट सी फर्दर डाउन साइड टू 1400। और अगर ये यहाँ पे लेट्स से 1725 के आसपास से ऊपर जाता है, तो देन यू वुड सी योर 1850 का टारगेट, राइट। बट ऑलरेडी एक्सपेंसिव शेयर है, तो थोड़ा सावधानी से ट्रेड करें। मेरे ख्याल से थोड़ा रिस्की है, अवॉइड करें। मिस्टर जोसेफ का सवाल है, नेस्ले इंडिया, आई एम इन्वेस्टेड इन योर व्यू ऑन फंडामेंटल्स। नेस्ले के फंडामेंटल्स, लेट्स लुक एट। सो ROC ROE मोर देन 100 है इसका, राइट। एक्सेलेंट रिटर्न देता है। बुक वैल्यू 81 रुपीज की है, एंड इट्स ऑलरेडी ट्रेडिंग मल्टीपल टाइम्स ऑफ 81 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू इसकी 241 है, ओके। सो ऑलरेडी 81 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड 1% का एक्सपेंसिव है वो हिसाब से। अगर हम इसकी फेयर वैल्यू की बात करेंगे, कैश जनरेटिंग, फ्री कैश जनरेटिंग कंपनी है, राइट। EG4 में चल रहा है। फेयर वैल्यू की बात करूंगा तो 2500 के आसपास का इसका फेयर वैल्यू है। नाउ इट्स अ कैश जनरेटिंग बिजनेस, बट व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी, व्हाट इज अ सेल्स ग्रोथ, ये देखते हैं। 5 साल का 9.9, 10% पकड़ लो सेल्स ग्रोथ, और प्रॉफिट है 18%। 5 साल का, 10 साल का 7% का सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है 9.16% का। तो ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से दिस कंपनी डज नॉट मीट द क्राइटेरिया ऑफ 15% प्लस का ग्रोथ, बट दीज आर कंजम्पशन थीम कंपनीज, जहां पे 2 डिजिट ग्रोथ लाना बहुत बड़ी चीज होती है, राइट। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से दिस कंपनी इज स्टेबल। अगर आप इन्वेस्टेड हो, इन्वेस्टेड रह सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अगेन डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल पे इसमें इन्वेस्टमेंट की है, राइट। अगर हम चार्ट को देखते, फंडामेंटली ठीक है, एक्सपेंसिव है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद फंडामेंटल, बट महंगी मिल रही है आपको ये वैल्यू पे। अगर जब भी महंगी होगी ना कोई भी कंपनी, तो क्या होता है, अक्सर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी आपको उसमें, राइट। क्योंकि डिविडेंड भी नहीं दे रही, तो टाइम टू टाइम लोगों को पता है, जो प्रोफेशनल्स हैं उनको पता है कि भाई टाइम टू टाइम हमको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। अभी अगर मैं इसकी ट्रेंड लाइन के हिसाब से बात करूं, जिस चैनल में ये चल रहा है, कुछ दूसरी वाली ट्रेंड लाइन ले ली जिससे तो ये बाहर आ गया। ये वाली ट्रेंड लाइन को हम अगर एक्सटेंड करें, तो ये चैनल के लोअर एंड पे आ रहा है फ्रेंड्स, राइट। चैनल के लोअर एंड पे अक्सर बाइंग होगी ये लेवल पे। कौन से लेवल पे? समवेयर अराउंड 19,000 के लेवल पे, राइट। टारगेट क्या होना चाहिए आपका? इट हैज गिवन अ गुड अपसाइड, राइट। ऑल टाइम हाई बनाया था रिसेंटली 21,000 का। सो 10% का अपसाइड यहां से आपको देखने को मिल सकता है इसमें। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द फंडामेंटल। एक्सपेंसिव होना फंडामेंटल कमजोरी नहीं है, बाय द वे, ठीक है। एक्सपेंसिव होने का मतलब है डिमांड बहुत ज्यादा है, पीपल आर सेलिंग लेस ऑफ द स्टॉक, मे बी फ्री फ्लोट कम हो सकता है, राइट। या अवेलेबिलिटी, कई बार आप देखोगे स्टॉक की अवेलेबिलिटी नहीं हुई तो भी प्राइस ऊपर चली जाएगी। सो रिमेन इन्वेस्टेड इफ यू आर देयर। स्कृति का सवाल है, एनटीपीसी फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। एनटीपीसी सरकारी कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर, राइट। तो अगेन मार्केट ऊपर जा रही है, बट ये अपना आराम से कंसोलिडेशन के फेज में बैठी हुई है, राइट। लेट्स सी द अपसाइड कहां पे थी इसकी, 182 पे ये ट्रेड कर रही थी पहले। सपोर्ट कहां पे इसका? we'll look at the fundamentals, but before that let's look at की if you want to, तो सपोर्ट इसका करीब करीब 160 के आसपास में अभी, ठीक है।
169 पे चल रहा है, so this could be your, let's say 155 or so could be your ये point, 155 या 156 could be your stop loss from the perspective of taking position. अगर आप फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो तो एनटीपीसी, लेट्स लुक एट इट, 146 की बुक वैल्यू 170 पे ट्रेड कर रहा है, 1.16 टाइम्स, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। आरओसी आरओई देखोगे तो अगेन सरकारी कंपनी उसका, जैसे मैंने बताया कि ये हमेशा कम आरओसी और कम आरओई दे रहे होंगे, राइट। कारण ऑब्वियस है, ऑल ऑफ यू आर अवेयर व्हाट इन गवर्नमेंट कंपनीज हाउ एम्प्लॉइज वर्क एंड इन प्राइवेट कंपनीज हाउ एम्प्लॉइज वर्क, वैसे प्रोडक्टिविटी भी होती है, राइट। एनटीपीसी में कोई डिविडेंड बहुत बढ़िया नहीं, 4% का डिविडेंड है, राइट। प्लस तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट की कंपनीज में नहीं होती। फ्री कैश फ्लो बहुत अच्छा है, राइट। 30,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है यहाँ पे। अगर मैं फेयर वैल्यू के हिसाब से बात करूँ तो 200 सवा 200 की फेयर वैल्यू इसकी, काफी क्लोज टू फेयर वैल्यू चल रहा है ये, राइट। लेट्स लुक एट शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। 51% गवर्नमेंट के पास में है, 14% एफआईज के, 15% एफआईज ने थोड़ा परसेंटेज बढ़ाई है यहाँ पे, डीआईज ने थोड़ा परसेंटेज गिराई है, पब्लिक 2.5% में यहाँ पे। सो इसका मतलब है कि एक्चुअली ज्यादातर डीआईज बैठे हुए हैं स्टॉक में गवर्नमेंट के बाद, राइट। तो फ्री फ्लोट शायद कम होगा और इसके लिए भी बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं हो रहा है और स्टैग्नेंट है। Should you take position in a government company with a 3-year price perspective? अगर आप इस कंपनी का मंथली चार्ट देखोगे तो 3 साल का हमको इसका बिहेवियर मिलेगा, ठीक है। लेट्स अप्लाई द मंथली चार्ट, ठीक है। सो अगर इसका आप मंथली चार्ट देखोगे तो यू वुड सी कि 2007 में भी प्राइस यही था, आज भी प्राइस यही है। नाउ तो आपने क्या कमाया 2007 से 2022 तक, मतलब 15 साल में कुछ भी नहीं। तो अगले 3 साल बाद क्या ये छप्पर फाड़ के ऊपर निकल जाएगा? नो गारंटी, ठीक है, क्योंकि बायर ही कम होंगे। तो अगर आपने कुछ कमाया तो इसमें शायद यहाँ पे या तो बोनस कमाया और या डिविडेंड कमाया, बट डिविडेंड भी इसमें बहुत कम है। तो 3 साल का पर्सपेक्टिव न रखें यहाँ पे, क्योंकि डिविडेंड बहुत अच्छा नहीं है, तो सरकारी कंपनी है, राइट। मेरे ख्याल से यू कैन फाइंड आउट सम अदर कंपनीज वेयर यू वुड गेट अ बेटर रिजल्ट। 6 महीने 8 महीने के पर्सपेक्टिव से अगर आप देख रहे हैं तो अलग बात है। तो इफ यू कैन एक्सपेक्ट 10-12%, 15% रिटर्न, तो फेयर इनफ। विक्रम राठौड़ जी का सवाल है मारुति, लेवल फॉर मारुति का मैं लेवल आपको दे देता हूँ। मारुति आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टेड फ्रॉम 5,800 6,000 लेवल्स एंड आई बीन रेगुलरली फॉलोइंग। तो मेरा टारगेट है यहाँ पे 10,000 का, राइट। इनफैक्ट 9,700 तक तो ये जाके आया, 9,777, राइट। सो आई एम looking at 9,996 to book my first lot. ओके, पार्ट प्रॉफिट बुक करता हूं मैं और पार्ट में एंट्री लेता हूं। तो बाद में वापस से करेक्शन आया, करेक्शन कंप्लीट हो गया। इफ यू हैव नॉट टेकन अ पोजीशन, इफ यू आर लुकिंग फॉर टेकिंग द पोजीशन, पार्ट पोजीशन आप यहाँ पे ले सकते हो। 9,000 पे कोई बुरा प्राइस नहीं है मारुति का, और आपका टारगेट 1,000 रुपए अपसाइड में, 1,000 रुपए का मतलब करीब 12-13% का आपको टैक्सेस और ब्रोकरेज काट के 10% रिटर्न आपको मिल जाएगा बिफोर मार्च एंड। आई एम पॉजिटिव ऑन ऑटो एज वेल एज मारुति। मिलिंद सावंत जी का सवाल है एनएमडीसी एंड अंबुजा सीमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। एनएमडीसी में कोई इश्यू नहीं है, आप एनएमडीसी में पोजीशन ले सकते हैं। मिलिंद जी, एनएमडीसी में रिसेंटली डीमर्जर हुआ है, राइट। जनरली मर्जर होता है, बट यहाँ पे एनएमडीसी स्टील और एनएमडीसी पेरेंट जो कंपनी है उसका डीमर्जर हुआ। वो डीमर्जर की वजह से यहाँ पे प्राइस में ड्रॉप आया था, राइट। तो क्या डीमर्जर की डील थी? एक शेयर के ऊपर एक शेयर एनएमडीसी स्टील का दिया जाएगा। एनएमडीसी के एक शेयर की जो वैल्यू थी ना, वो करीब करीब 30 रुपीज या 26 रुपए के आसपास में आकी गई थी। इसका मतलब अगर मेरे को एक शेयर मिलता था तो 26 रुपए नीचे
जाना चाहिए था इसको, बट ये गया 92 रुपीज में। कहां से? 30 से, मतलब ये 32 रुपीज गिरा, बट द सेम डे इसने रिकवर कर दिया था। कितना? अराउंड 29 रुपीज रिकवर कर दिया था, विच वॉज अ वेरी लॉजिकल। उसके बाद में मैंने यहाँ पे थोड़ी पोजीशन मेरी बढ़ाई। आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन एनएमडीसी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? कारण बताता हूँ आपको। एनएमडीसी gives one of the नवरत्न कंपनीज है, पहली चीज सरकारी है ऑफ कोर्स, लेकिन आप देखो एज ऑफ नाउ 118 रुपए के भाव पे भी ये 12.5% का डिविडेंड यील्ड देती है। ठीक है, सो आई हैव अ बंच ऑफ कंपनीज व्हिच आर हाई डिविडेंड यील्ड कंपनीज and I earn lakhs of rupees of dividend from these companies, so I am invested in NMDC as well. That's my disclaimer here. Okay, now should you buy it or not? तो आप समझो जो NMDC असेंडिंग चैनल में चल रही थी वो वही है। ये जो गिरावट थी ये बिकॉज ऑफ द डिमर्जर थी। ओके, सो इफ यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड यू माइट बी गेटिंग दिस डिमर्ज्ड शेयर ऑफ एनएमडीसी स्टील सूनर और लेटर। एज ऑफ नाउ नहीं, ये आया है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक है, कोई इश्यू नहीं। अंबुजा सीमेंट, so that's अंबुजा सीमेंट, राइट। अपसाइड में है, कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है, मेरे ख्याल से यहां से फर्दर अपसाइड शुड बी देयर। बट जो सीमेंट सेक्टर में एक टेक ओवर और ये काफी इंफॉर्मेशन न्यूज का काफी फ्लो होता है, राइट। और वो न्यूज के फ्लो के वजह से आई पर्सनली डोंट प्रीफर टू बी इन सीमेंट कंपनीज। क्या यहाँ पे ग्रोथ पॉसिबल है? यस, ग्रोथ पॉसिबल है, क्योंकि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, जो आप इंफ्रा सेक्टर देखो ग्रो कर रहा है, रियलिटी सेक्टर देखो ग्रो कर रहा है, तो सीमेंट तो लगने ही वाला है, राइट। और अभी भी कैपेसिटी सीमेंट की और बढ़नी चाहिए, वो हिसाब से ये अपसाइड इसमें आपको देखने को मिल सकती है। बट अभी देखें सीमेंट की कंपनी में, अभी इसी भी कंपनी को ले लोगे तो करीब करीब ये 1 साल का पीरियड है जहां पे ये स्टैग्नेंसी में चला गया था। ये भी अगर आप देखोगे ये पीरियड भी पिछले 2-2.5 महीने 2 महीने से ये झूल रहा है ये लेवल पे। अक्सर इन कंपनीज की ये चैलेंजेस हैं, दे विल बी रेंज बाउंड, राइट। एकदम स्ट्रेट ग्रोथ यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, फिर करेक्शन मिलेगा। सो जनरली आई अवॉइड सीमेंट कंपनीज। आपके ऊपर है, अगर आप इसमें ये लेना चाहते हो तो फंडामेंटल में देख सकता हूं अंबुजा सीमेंट का। तो 129 का स्टॉक है, 4.39, नॉट वेरी एक्सपेंसिव स्टिल, बट 61 के पी पे ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री के पी से ये ऑलरेडी 2.5 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। प्रमोटर अपना माल बेच रहे हैं, 0.05% प्रमोटर ने निकाला है, ऑल्दो प्रमोटर के पास में ओनली 63% है, राइट। अगर मैं फेयर वैल्यू के हिसाब से बात करूं, 225 रुपए के आसपास की इसकी फेयर वैल्यू है, ऑलरेडी ट्रेडिंग ओवर द फेयर वैल्यू। फ्री कैश फ्लो 12,000 करोड़ का है, दैट इज रफली 10% ऑफ द मार्केट कैप, राइट। ब्लू चिप कंपनी, कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा है, प्रोज कम है इसके फेवर में। रिसेंटली शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ चेंज आया है क्या? एफआईआईज निकले हैं यहाँ से, डीआईज ने थोड़ा बढ़ाया, बाकी जनता जनार्दन ने भी थोड़ा बढ़ाया। तो बेचा किसने फिर 63.39 से? ओके, एफआईआईज ने स्लोली यहाँ पे अपना स्टॉक्स बेचा है, डीआईज ने बढ़ाया, और जो ज्यादा स्टॉक डीआईज जो नहीं खरीदा वो जनरल। शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है। ग्रोथ वगैरह आपको एक बार देखनी पड़ेगी। अगर आप आरओसी आरओई देखेंगे 22% का कैपिटल पे रिटर्न है, वाइल एज इक्विटी, जो कि इक्विटी पे इसका रिटर्न है ओनली 12% है। डिविडेंड कुछ खास देती नहीं है, राइट। करेक्शन होने दीजिए, मेरे ख्याल से लोअर लेवल पे मिलता है अगर आपको 480 490 के आसपास में, तो लेना ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट माइट बी स्लाइटली एक्सपेंसिव। Friends, you guys have put a lot of questions. What I would suggest, it's already 10 o'clock, 10:05 हो गया। आप हमारे YouTube में जहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड होगी फ्रेंड्स, वहाँ पे अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर दीजिए।
I'll try either to record a video for you, technical and fundamental analysis करके उस स्टॉक का, right? Or at least I'll give you a write up. तो यहाँ पे community tab होता है, या नहीं तो आप यही comment section में ये आज के वीडियो के इधर डाल दीजिए. So I'll address it that way क्योंकि time limited है. देखता हूँ क्विकली कितने सवाल ले सकता हूँ. श्रुति सिंह का सवाल है, I've invested in Mahindra and Mahindra last year, now in profit. Should I book the profit and wait for next 5 years for more profit? Okay. Mahindra and Mahindra Group, Mahindra की भी कई कंपनीज हैं. Let's say M&M, right? I'm not very much bullish on M&M, okay? क्योंकि multiple businesses हैं और clarity नहीं है कि ऐसा नहीं है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल एक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा होटल का बिजनेस उनका जो है या क्लब वाला वो बिजनेस अलग है. काफी हौच-पौच है इनके बिजनेस में. दैट इज वेयर आई डोंट सी द क्लैरिटी. मेरे को क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो आई एम नॉट रियली इन्वेस्टेड इन. प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक बेचा है. यहाँ पे प्रोमोटर खुद 19% है और उसके बाद भी बेच रहे हैं, राइट? तो 406 रुपए की बुक वैल्यू, तो 3 गुने पे ट्रेड हो रहा है, 3-3.25 गुने पे ट्रेड हो रहा है. स्टॉक 18.8 के पी पे, जबकि सेक्टर जो इंडस्ट्री का पी है वो 37 का, तो अंडरवैल्यूड है दैट वे. फ्री कैश फ्लो देखो 8,295 करोड़ का माइनस में फ्री कैश. तो फ्री कैश फ्लो नहीं दे रहा है तो इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए. क्या ये स्टॉक ऊपर जाएगा? यस, जा सकता है, बट ये मेरी फिलॉसफी से बाहर है, राइट? अगर आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो महिंद्रा में प्रोमोटर से ज्यादा शेयर होल्डिंग तो एफआईज और डीआईज के पास में, राइट? प्रोमोटर्स होल्डिंग ओनली 19%, एफआईज डीआईज होल्डिंग एट 38 and 28% respectively. So that way प्राइस स्टेबल रहेगी. ओनली थिंग इज क्या आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे? क्योंकि एफआईज और डीआईज ने बहुत लोअर लेवल पे खरीदा होगा. ये लेवल पे हो, मेरे ख्याल से अगर करेक्शन आती है उससे पहले आप निकल जाओ तो बेहतर है. अंश का सवाल है, नाउ अगेन दिस इज माय फिलॉसफी आई एम शेयरिंग. आई एम नॉट सेइंग आपको ये करना चाहिए, ठीक है? मैं होता तो मैं ये करता. माय फ्रेंड इज आस्किंग मी टू बाय Suprajit Engineering for a long-term investment. Can you help me in analyzing fundamental of this company? So, if your friend is sponsoring you for buying the stock, you have no issues in buying any stock, right? क्योंकि डूबता है तो फिर उनका डूबता है. बट आप अगर आप अपने पैसे से खरीद रहे हो स्टॉक को, तो डेफिनेटली उसका एनालिसिस करें. When you find value for money, then only you buy. It's already trading 4 times. आरओसी आरओई ठीक ठाक है, 16% 17% का है, करीब करीब पी 30 का है. इंडस्ट्री का पी 23, तो ऑलरेडी ये एक्सपेंसिव ट्रेड हो रहा है. फेयर वैल्यू पर्सपेक्टिव से 200 रुपए की फेयर वैल्यू है, उसके ऊपर ये ऑलरेडी महंगा चल रहा है, राइट? तो मेरे हिसाब से महंगा स्टॉक है. कैश फ्री, दूसरा स्मॉल कैप कंपनी है. फ्री कैश फ्लो है. फ्री में तो कुछ नहीं, यहाँ पे फ्री कैश फ्लो है. यहाँ पे चार्ट के पर्सपेक्टिव से ऑलरेडी डेथ क्रॉस बना हुआ है. यहाँ पे डाउन साइड करीब करीब 300 की है. मेरे ख्याल से थोड़ा डाउन में आना चाहिए इसको, राइट? बिजनेस देखें, उसके बाद में इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें. मेरे ख्याल से एफआईज तो नहीं के बराबर होना चाहिए. यहाँ पे जनरली इतने छोटे कैप में लेते नहीं वो लोग, बट फिर भी है. यहाँ पे 11% ने एफआईज ने हाफ कर दिया, तो कुछ तो होगा. डीआईज ने खरीद लिया और सबसे ज्यादा शेयर होल्डर हमारे पब्लिक के पास में, तो मैं जरा अवॉइड करता हूँ पब्लिक वाली, जहाँ पे ये रिटेल वाले ज्यादा रहते हैं, बराबर है? Next question is, I am thinking of taking a long position in a Baat. I think हमने काफी टाइम पहले इसको डिस्कस किया था. It was very very expensive, right? सस्ते में खरीदें स्टॉक अगर मिलता है तो इट्स ट्रेडिंग 15 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू, राइट? 6-6.5 हजार रुपए की इसकी फेयर वैल्यू है. उसके ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है ये. डिस्ट्रीब्यूशन जोन के आसपास में भी है. मेरे ख्याल से अगर आपको ये 19,000 के आसपास में मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज बहुत महंगा है. 19,000 या 18,500, दैट वुड बी द प्राइस एट विच आई वुड सजेस्ट यू दिस. अनुप जी का सवाल है, सर जी आई नीड योर ओपिनियन ऑन ई क्लॉक्स एंड एपीएल. ई क्लॉक्स देखते हैं.
1 लाख सर्विस, आई थिंक हमने ये फ्यू वीक्स पहले भी हमने ये डिस्कशन में लिया था, राइट? 4 टाइम्स बुक वैल्यू के ट्रेड कर रहा है, ठीक ठाक है, आरओसी आरओई अच्छा, फेस वैल्यू 10 रुपए की है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26% का, नॉट बैड, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ठीक ठाक है, प्रॉफिट 2 डिजिट में है इसका, 10 साल का और 5 साल का प्रॉफिट तो लिटरली 3% है, कम है। फ्री कैश फ्लो ठीक ठाक है, स्मॉल कैप कंपनी है, अच्छा फ्री कैश फ्लो है। 900 950 रुपए की फेयर वैल्यू है इसकी, और ये ऑलरेडी 1400 में ट्रेड कर रहा है, तो मतलब महंगा ट्रेड कर रहा है एज ऑफ नाउ। यहाँ पे भी मेरे को डेथ क्रॉस दिखाई दे रहा है इसमें, सो लोअर साइड में, रुकिए इसको यहाँ पे लेते हैं, चार्ट में लेते हैं, अगर इसका चार्ट हमने सेव किया रहेगा तो दीजिए, चार्ट लेने में यहाँ पे नहीं है, लेट मी ओपन है फ्रेश चार्ट। ठीक है, आई थिंक या तो आपने मेरे को स्पेलिंग बराबर नहीं दी है, स्पेलिंग आपका बराबर नहीं था सर, कभी भी दें तो स्पेलिंग बराबर दें, प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि मुझे सबका इवन स्पेलिंग पता होएगा, कई बार नहीं पता होता है, बिकॉज वी हैव नॉट इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी। नाउ इफ यू लुक एट 50 पीरियड मूविंग एवरेज एंड 200 राइट, तो ये तो उसने बंद कर दिया मूविंग एवरेजेस देना, तो यहाँ से जो मेरे को दिखाई दे रहा है वो चार्ट है ये, I don't know how to expand it here, right? तो यहाँ पे ये ना कंप्लीट बेरिश है इस चार्ट पे, दैट इज वेयर आई सेड कि अवॉइड करें यहाँ पे, इसमें जो डेथ क्रॉस बना हुआ है, राइट? सो आई वुड प्रीफर इट टू कम टू दिस लेवल ऑफ 900 सम ऑड का। लेट मी रीलोड। ओके, सो ये यहाँ पे इसने डेथ क्रॉस बनाया हुआ, राइट? डाउन साइड राइट, वाले बच्चे 1 साल का दिखा रहा है चार्ट, ओके, 10 साल का देखें। सो भी कंसोलिडेशन के फेज में मेरे ख्याल से आईटी सेक्टर का स्टॉक है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। मेरे ख्याल से अगर आप 1490 या 1500 के ऊपर जाता है और स्टेबली वहां पे ट्रेड करता है, तो देन आप इसको 1900 के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हो। अगर ये नीचे आता है ना 50 पीरियड मूविंग एवरेज के, मतलब अगर 1400 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है तो अवॉइड करें इस स्टॉक को। ज्यादा सवाल नहीं ले पाऊंगा, आपका एक ही सवाल लिया मैंने, कांटो, अरे बहुत सारे सवाल हैं बॉस। As I suggested, please ask your questions in the YouTube, and apart from that, also subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon after subscribing, so that आपको जब भी मैं आपके सवाल का जवाब दूं या कुछ भी ऐसा वीडियो आए तो आपको एडवांस में पता चल जाए। That is what I am inviting you to do now, because there are plenty of more questions left out. It will not be feasible for me to be answering the rest of the questions at this point of time, right? So thank you so much for being part of this show, Stock Market Ki Baat MJ ke saath. It's immense pleasure. It's awesome experience to be, looking at so many stocks along with you. This is an opportunity for me to study and joint study हो जाती मेरे लिए, right? So thank you so much. Have a wonderful weekend, and take care of your health as well as wealth. Good night. Happy weekend.